اس نے رات کے 4 بجاتی گھڑی کی جانب دیکھ کر سر جھٹکا اور پھر واش روم میں شاور لینے چلا گیا۔ وجود پر چڑھی تھکن اور اعصاب پر جمی برف شاید اسی طرح پگھل سکتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر رخ ڈریسنگ روم کی جانب پھیرا اور پھر اگلے ہی چند لمحوں میں سر کے بالوں کو رگڑتا وہ باہر نکل رہا تھا۔ سنگار میز کے آگے کھڑے بالوں کو رگڑتے اس کے ہاتھ پل بھر کو ساکت ہوئے تھے جب اس نے اپنے وائبریٹ موڈ پر لگے موبائل کو زوں زوں کی آواز کے ساتھ بجتے دیکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر پیشانی پر لکیریں لیے موبائل اٹھا لیا۔ اسے سارے عرصے میں صرف اتنا ہی اندازہ تھا کہ کرتارپور والوں کی ہاشم سے کیا دشمنی تھی، وہ انہیں زندہ سلامت کیوں چاہیے تھے، لیکن اس کال کے بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انہیں کیوں چاہیے تھا۔ انجان نمبر سے آئی کال اس نے محتاط سے انداز میں ریسیو کر کے کان سے لگائی اور پھر خاموشی سے کھڑا رہا۔ یہ احتیاط اسے اس جنگل نے سکھا ہی دی تھی۔ پھر اسے کوئی انجان سی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن جو وہ آواز کہہ رہی تھی اسے سن کر اس کا سارا جسم پل بھل میں جم کر پگھلا تھا۔ اس کے آدمی نے ہاشم کی لاش اگلے سے اگلے گاؤں میں دیکھی تھی۔ وہ نہر کے پانی کے ساتھ بہتا اب گاؤں کے کسی کنارے پر بے یار و مددگار پڑا تھا۔ بغیر کسی جنازے اور بغیر کسی غسل کے اس نے خالی خالی نظروں سے سنگار آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کا دل لمحوں میں سکڑ کر پھیلا تھا۔ تولیہ بیڈ پر ڈالتے اس نے بے جان ہوتے قدموں کے ساتھ خود کو بامشکل کھڑا رکھا۔ اس کا دل واقعی سکڑ کر پھیل رہا تھا۔ کوئی آواز سی تھی جو اسے بہت بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس نے بے تحاشا بند ہوتے دل پر ہاتھ رکھا اور پھر بیڈ پر آ بیٹھا۔ سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ بار بار سر جھٹکا۔ کڑے ضبط کی وجہ سے اس کے دانت جم گئے تھے اور کمپٹی کو جاتی رگ سختی کے باعث پھول گئی تھی۔ نسواری آنکھوں میں گہری سرخی اترنے لگی۔ ولی احمد ٹوٹنے لگا۔ نہیں، اس نے بار بار آنکھوں میں آتی گلابی سی نمی کو مسل کر انکا کیا، لیکن یہ کیا؟ اس کی آنکھیں اس کے اختیار سے باہر ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ نہیں، ہاشم کے مرنے کا اسے دکھ نہیں تھا۔ اسے اس کا کوئی افسوس، کوئی ملال نہیں تھا، مگر جس چیز، جس احساس اور جس خیال نے اسے جکڑ لیا تھا وہ تھا اس کا سب سے بڑا خوف، اس کا دل کو جکڑ کر بھینچنے والا خوف۔ بغیر کسی جنازے اور غسل کے مر جانا، بغیر کسی قبر کے مر جانا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتا وہ سیدھا ہوا۔ نفی میں زور زور سے سر ہلا کر اپنے اندر شور کرتی سوچوں کو بھی جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان سب کو نہیں جھٹک پایا۔ وہ ان سب کو نہیں جھٹک پا رہا تھا۔ نہیں، اس نے پرشکوہ آسمان کی جانب اٹھائی تھی۔ آسمان والا اسی کی جانب متوجہ تھا۔ آپ مجھے ابھی یہ سب یاد نہیں دلا سکتے؟ میں نفرت کرتا ہوں، اس انسان سے نفرت کرتا تھا، نفرت کرتا ہوں اور میں اس سے نفرت کرتا رہوں گا۔ اس نے آج بہت دنوں بعد آسمان والے کو یوں مخاطب کیا تھا۔ ہاں، بہت دنوں بعد آج اس نے اللہ سے بات کی تھی، بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید وہ طے کر چکا تھا، وہی جو ہمیشہ سے سب طے کر کے رکھتا تھا۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی، اس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا، اس نے میری ذات پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اے اللہ، آپ مجھے اس وقت یہ سب یاد نہیں دلا سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس آواز کے پار اب سب کچھ دھندلاتا جا رہا تھا۔ وہ آواز اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس جیسا نہیں، وہ اس جیسا کبھی بھی نہیں تھا، وہ اس ہاشم جیسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کھینچ کر سانس لیا۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ سب کچھ اس کے ہاتھ سے ایک بار پھر پھسل رہا تھا۔ وہی 14 سالہ خوفزدہ سا بچہ ایک بار پھر سے اس کے اندر سانس لینے لگا تھا۔ ولی احمد جانور نہیں تھا، ولی احمد انسان تھا، اسے انسان ہی رہنا تھا اور بس۔ ایک لمحے کی دیر تھی، ایک لمحے کا فیصلہ تھا، ایک ساتھ کا تعین تھا۔ ساری دشمنیاں، سارے زخم اور سارے قصے جیسے قصہ پارینہ ہو گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور سنگار میز سے چابیاں اٹھا کر باہر بھاگتے اس نے ایک پل کو خود کا عکس آئینے میں دیکھا تھا۔ وہ اس مکروہ سے حسین کا ہی بیٹا تھا۔ ہاں، وہ اسی کی اولاد تھا، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اس کے جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے باریکی سے بنے ہونٹ اور اٹھی ناک، گہرے ابرو اور عجیب پرکشش سی نسواری آنکھیں۔ اس کے برعکس حسین اور ہاشم کے نقوش بہت بھدے اور خاصے ایک جیسے تھے۔
لیکن ولی، اس نے آج اس پل خود پر غور کیا تھا، وہ ان جیسا تھا ہی نہیں، وہ ان جیسا کبھی بھی نہیں تھا، وہ ان جیسا کبھی ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ انسان تھا، عزت کرنے والا اور دل رکھنے والا انسان۔ وہ ان جیسا جانور نہیں تھا، اسی لیے وہ جائے گا، ہاں وہ جائے گا، اسے ہی جانا ہوگا۔ وہ ان جیسا نہیں ہے، وہ انسانیت دکھائے گا، اس کا حساب وہ اللہ پر چھوڑتا ہے، وہ اس سب کا حساب اللہ کو دے رہا تھا۔ اس نے قبول کر لیا تھا کہ اللہ تھا، اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت تھا، وہ خود خدا نہیں تھا، وہ واقعی خدا نہیں تھا، اور یہ ایک احساس کہ خدا کوئی اور تھا، یہ ایک احساس کہ میزان اور عدل کا ترازو رکھنے والا خدا اس کے ساتھ تھا، تو اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ باہر بھاگتے ہوئے اس کے کندھے بے حد ہلکے تھے، اس کا وجود گویا ہوا سے بھی زیادہ ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے ہاشم سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اس سے اب بھی نفرت تھی، لیکن اب وہ ان جیسا نہیں تھا، اب اسے اپنا انجام یاد رکھنا تھا، کیونکہ کہانیاں اپنے آغاز نہیں، انجام کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ کئی گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد اس نے صبح ہوتی فجر میں گاؤں کا دروازہ پار کیا۔ نہر گاؤں کی داخلی حدود کے ساتھ ہی بہتی جا رہی تھی۔ اس نے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر گاڑی ایک طرف کو لگائی اور پھر کار سے نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ ہاشم کی پولی لاش سے کئی فاصلے پر کھڑے لوگ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کے خدا سے معافی مانگتے ایسے انجام سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ اس نے انہی کے تعاقب میں دیکھا، کچی زمین پر بلا شبہ وہ ہاشم ہی تھا۔ اس کے گیلے بال چہرے پر چپکے تھے اور چہرہ برف سا سفید ہو رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کی لاش سے ناقابل برداشت بو اٹھ رہی تھی۔ ایسا تعفن اٹھ رہا تھا کہ جس میں سانس لینا بھی محال ہونے لگا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، کسی کی لاش کا اس قدر جلدی تعفن زدہ ہو جانا حیران کن بات تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں سے اس کے سینے پر زور ڈال کر اندر جمع پانی باہر نکالا، پھر بامشکل اس نے گاؤں میں سے چند نوجوانوں کو راضی کیا اس کی لاش اس کے ساتھ اٹھانے میں۔ کوئی بھی اس کی بدبودار لاش کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا، یوں لگتا تھا گویا اس سے سیاہ اعمال کا تعفن اٹھ رہا ہو۔ دو چار لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے اسے گاڑی میں ڈالا اور پھر لوگوں سے قبرستان کا راستہ پوچھتا آگے بڑھ گیا۔ قبرستان پہنچ کر اس نے قبر کی کھدائی کرنے والے کے ساتھ مل کر اس کی قبر تیار کی، لیکن اسے قبرستان میں دفنانے کے بجائے اس نے اسے ایک پہاڑی پر دفنایا تھا۔ اسے لحد میں اتارتے اس نے ایک آخری بار اس کا چہرہ دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتا قبر سے باہر نکل آیا۔ وہ اسے جنازہ نہیں دے سکا، نہ ہی غسل، لیکن ہاں وہ اسے قبر دے سکتا تھا جو اس نے دے دی تھی۔ اس نے کوئی بھی بے حرمتی کیے بغیر اس کو عزت کے ساتھ قبر میں دفنا دیا تھا۔ واپسی کے سارے راستے اس کا دل بہت شانت تھا۔ خوشی نہیں تھی، لیکن ایک خاص قسم کا سکون تھا کہ اس نے جو کیا وہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اسے کرنا ہی چاہیے تھا۔ اس نے انتقام کی جنگ کے آخر تک انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ ہاں وہ اس سب میں بھیڑیا نہیں بنا تھا، وہ انسان ہی رہا تھا۔ واپسی پر شاور لینے کے بعد آج بہت دنوں بعد وہ فجر پڑھنے مسجد جا رہا تھا۔ اگرچہ فجر قضا ہو چکی تھی، اگرچہ اسے نماز کی دیر ہو گئی تھی، لیکن آج وہ نماز پڑھنا چاہتا تھا، آج وہ واقعی نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ جھکے سر اور ہر بوجھ سے آزاد دل کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ولی احمد نے ایک بار پھر اپنی کھوئی ہوئی نماز پا لی تھی۔ دوسری جانب تاریکیوں میں ڈوبی حسین احمد کی حویلی میں نگار اب تک دروازے پر جمی تھی، اور حسین وہ بے حس و حرکت چھت کو سرخ آنکھوں سے تکتا خون کے آنسو رو رہا تھا، ایسے آنسو جو دکھائی نہیں دیتے تھے، مگر ان کی اذیت اور تکلیف سب تکلیفوں اور اذیتوں سے زیادہ کڑی اور دل چیرنے والی ہوتی تھی۔ اگر جو وہ ہاشم اور ولی کی ماؤں کو مارنے کے بجائے ان کے ساتھ طریقے سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کر لیتا، اگر جو وہ کبھی بھی کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کرتا جو اسے اس لاغر مقام تک پہنچاتا، کاش کہ وہ بھی ولی کو ہاشم ہی کی طرح پال لیتا، کاش کہ وہ لوگوں کے ڈر سے زیادہ اللہ کا ڈر دل میں رکھتا، تو آج ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے ہاشم کو نگار کی گود میں لا کر اس لیے ڈال دیا تھا کیونکہ پہلے پہل وہ بہت گھبرا گیا تھا، وہ اس ناجائز بچے سے ڈر گیا تھا، لیکن جب ولی پیدا ہوا تو حسین اپنے گناہوں پر بہت شیر ہو چکا تھا۔ اسے اب کسی کا بھی ڈر نہیں تھا اور نہ اسے مزید کسی بچے کو پالنے میں دلچسپی تھی۔ اس کی صحت کے لیے ایک ہاشم ہی کافی تھا جو کہ آج اس وقت اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔
اس کی سرخ پڑتی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر اس کی سفید بالوں سے چمکتی کنپٹی میں جذب ہوا تھا۔ کاش کہ وہ اٹھ سکتا، بس ایک بار وہ اس بستر سے اٹھنا چاہتا تھا، بس ایک دفعہ کی مہلت درکار تھی اسے۔ وہ ایک بار ولی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بار اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اس گہرے ہر پل رگوں میں سرایت کرتے احساس گناہ سے نجات دلا دے۔ بس ایک بار اس کے سامنے اپنے کیے کی تلافی کرنا چاہتا تھا، اگر جو وہ بس ایک بار اٹھ جائے۔ اس نے اپنا لاغر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، گردن کے ارد گرد بچھی رگیں زور لگانے کے باعث پھول گئیں، دانت جم گئے، تکلیف بڑھنے لگی، آنکھوں کے آگے موت کا سا اندھیرا چھانے لگا، لیکن بے سود۔ اس سے ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، ایک انگلی بھی ہلائی نہیں جا رہی تھی۔ تیز تیز سانس لیتا وجود پہلے سے بھی زیادہ کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ اگر جو وہ ایک دفعہ بھی اپنے کیے پر غور کر لیتا تو آج یہ سب نہیں ہوتا، لیکن اب سب ہو گیا۔ اب سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے بگڑے زاویے والے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو بہنے دیا، کیونکہ وہ ان آنسوؤں کو صاف کرنے پر اب قادر نہیں تھا۔ اب وہ ان کو صاف کرنے پر کبھی بھی قادر نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے ہی دن اسے قبر کھودنے والے کی عجیب سی کال موصول ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہاشم جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، وہ اب دوبارہ قبر سے باہر پڑا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اسے قبر سے باہر نکالا ہو۔ اس نے ناسمجھی سے ابرو سکیڑے اور ایک بار پھر اس آدمی سے قبر کھود کر ہاشم کو اس میں دفنانے کے لیے کہا، اور پھر دوبارہ موصول ہوئی کال پر اس کا سارا جسم سنسنا اٹھا تھا۔ صاحب جی، مجھے لگتا ہے اسے زمین قبول نہیں کر رہی۔ وہ اس بات پر ولی کی پیشانی کا ہر بل ڈھیلا ہو گیا تھا، نگاہیں ساکت ہو گئی تھی اور سانس تک رک گیا تھا۔ ہاشم کو زمین قبول نہیں کر رہی تھی۔ ہاشم کی لاش کو زمین نے اپنے اندر جگہ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ایک بار پھر سے دفنانے کے بعد اس کی لاش دوبارہ سے باہر دیکھی گئی تھی۔ وہ اس سارے دن میں سن رہا تھا، اچھا تو ایسا ہوتا ہے بد دعاؤں کا پلٹ آنا، یا اللہ۔ اس کا دل جیسے لمحے بھر کو لرز کر رہ گیا تھا۔ یہ احساس کہ مرنے کے بعد زمین بھی آپ کے جسم کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو کیسا لگتا ہوگا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سرسرا اٹھی تھی۔ جس کا جسم یہ زمین قبول نہیں کر رہی تھی تو آسمان کی جانب سفر کرتی اس کی روح کا کیا بنا ہوگا؟ کیا اسے بھی زمین پر زور سے پھینکا گیا ہوگا؟ کیونکہ بدکاروں کی تو آسمانوں پر جگہ ہی نہیں تھی۔ اسے ایک بات اس دن بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ انسان کو خود سے انتقام اور بدلے کے فیصلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تو ظالم انسان کے اعمال ہی طے کر دیتے ہیں کہ آگے جا کر اس کا کیا بننے والا ہے۔ ہاں، اسے کسی بھی قسم کے انتقام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ اس کا کام ہی نہیں تھا۔ اس کا کام تو بس اتنا رہ گیا تھا کہ وہ بس خاموشی سے کھڑا ان کو تباہ ہوتے دیکھتا رہتا۔ کرتارپور والوں نے ہاشم کو گولیوں سے چلنی کر دیا تھا اور حسین کو محسن نے ایسی حالت میں پہنچا دیا تھا کہ کہیں اس کے کچھ کرنے کی گنجائش باقی رہ گئی تھی۔ اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ پہلی بار زندگی میں پہلی بار اسے اوپر والے سے کوئی شکوہ نہیں رہا تھا۔ جس نے اس پر ظلم کیا تھا وہ سب آج اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ اسے کسی کو بھی جہنم واصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جہنم واصل کرنے کے لیے تو ان کے اپنے اعمال ہی کافی تھے، اور ہاں، اعمال جو بہت سی زندگیوں کی بربادی کے ذمہ دار تھے۔ حویلی سے اپنا سمیٹ کر نکلتے اس نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر اس حویلی کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس حویلی کو پلٹ کر دیکھا تو وہ پتھر کا ہو جائے گا، مگر اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ اس حویلی سے بہت دور جاتے اس نے اپنی محبت کو ایک ہی رات پہلے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ اس کی چچراتی دھوپ جیسی زندگی میں ٹھنڈی پھوار جیسی محبت، اس کی زندگی کی واحد آسانی، اس کی آتی جاتی سانسوں کو معطر کر دینے والی محبت، ایک ایسی چاہت جس نے اسے گرم تھپیڑوں جیسی زندگی میں نرم بہتی ہوا کا سا احساس دلایا تھا، جس نے اسے یہ بتایا تھا کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ اسے رلانا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے رلا کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ رونے پر مصر تھی، اور ولی اس نے اندھیرے میں اس کی جانب بڑھتے اپنے ہاتھ کو مٹھی بھینچ کر ڈانٹا تھا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنا چاہتا تھا، بس ایک دفعہ وہ اس کے آنسو اپنے پوروں پر سمیٹنا چاہتا تھا، ہاں بس ایک بار۔ لیکن کیا یہ ٹھیک تھا؟ اسے اس طرح سے چھونا، اگلے ہی لمحے اس کا بڑھتا ہاتھ مٹھی میں بند ہو کر نیچے گر چکا تھا۔ پھر اس نے اپنا رومال جیب سے نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ اسے لگا وہ اس کا رومال اس کے منہ پر مار کر چلی جائے گی، لیکن اس نے بغیر کسی پس و پیش کے خاموشی سے رومال لے کر
आंसू पोंछ लिए थे। अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए बामुश्किल अपनी बहती सांसों को जहरीला होने से रोके हुआ था। जब से गुलाबी पड़ती आंखें बेहद स्पाट हो रही थी और जिस्म तो जैसे बर्फ का कोई ग्लेशियर बन गया था। लेकिन ये इसका इन कच्ची सड़कों पर आखिरी सफर था। वो जानता था बस कुछ पल की अजियत, बस चंद लम्हों का अजाब, हाँ बस कुछ जरा और। दूसरी जानिब पहाड़ी पर पड़ी हाशिम की लाश अब के गलने सड़ने लगी थी और इसकी लाश से उठता ताफुन अब फैलकर सारे गाँव की फसलों को बदबूदार कर रहा था। हाशिम जिसका आगाज और अंजाम दोनों ही भयानक थे। 1.5 साल बाद, आज पूरे 1.5 साल बाद, सफेद हवेली के सामने अपनी गाड़ी से निकलते वली ने एक नज़र इस ऊंची शान से खड़ी निगाहें चुंधिया देने वाली हवेली को देखा था। वो आज भी 1.5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद वैसी ही थी, बेदाग, ठंडी और पुरसकून। गहरा सांस लेकर इसने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। वो यहाँ नहीं आना चाहता था, इसने यहाँ कभी ना पलटने का तहिया कर रखा था, लेकिन फिर भी आज न जाने किस एहसास के तहत मजबूर होकर वो यहाँ चला आया था। बस एक सरदार बाबा, बीजान और अंदर बढ़ते वली ने दिल में उबलती ख्वाहिश पर सर झटका था। सफ़ेद लिबास से ढका इसका ऊंचा सरापा आज भी इतना ही खूबसूरत और सहरंगेज था, पहले से ज़्यादा संजीदा और खामोश। बढ़ती ठंड के पेश नज़र गर्दन की गिर्द लिपटी शाल अब भी वैसी ही थी। यूँ लगता था कि जैसे वो यहाँ से गया ही ना हो, बस अभी अभी डेरे से पलटा हो। कदावर सा दाखिली दरवाज़ा पार करते हुए इसकी निगाह चौकीदार पर पड़ी। वो बेयकीनी से इसे देखता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। वली मुस्कुराकर आगे बढ़ा। चौकीदार भागकर इससे लिपट गया, साथ साथ शायद वो रो भी रहा था। इसने मुस्कुराकर इसे खुद से अलग किया, फिर गर्दन जरा झुकाकर इसकी बूढ़ी नम सी आंखों को देखा। आप साहब, आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद इस हवेली में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था साहब, आपने गलती की यहाँ से जाकर। अपने आंसू लरसती उंगलियों से साफ करता बरसों पुराना चौकीदार ज़ारो कतार रो पड़ा था। इसकी पेशानी पर यकदम फिक्र उभरी। एक नज़र सफ़ेद स्तूनों पर जमी हवेली को देखा, दिल जैसे कई खदशों से घबराकर फड़फड़ाया था। आप कैसे हैं गुल बाबा? मैं तो ठीक हूँ साहब, लेकिन इस हवेली में अब कुछ ठीक नहीं है। खुदा का वास्ता सरकार, अब यहाँ से कहीं मत जाइएगा। इसने बामुश्किल मुस्कुराकर इनकी पीठ थपकी और फिर तेजी से आगे बढ़ा। दिल धड़क रहा था और सांसें अब शायद किसी बोझ की वजह से मुश्किल से चल रही थी। दाखिली दरवाजे के अंदर कदम रखते ही वो लम्हे भर को साकित सा हो गया था। बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक नजर आती ये हवेली अंदर से गहरी वीरानियों में डूबी हुई थी। इसने चेहरा घुमाकर दरो दीवार से टपकती वहशत को देखा और फिर बंद होते दिल के साथ आगे बढ़ा। इतनी खामोश, ऐसी गहरी खामोशी तो इस हवेली का हिस्सा कभी नहीं थी। कोई खालीपन सा था जिसने हवेली को अपने असेब ज़दा से हिसार में जकड़ा हुआ था। लाउंज वीरान पड़ा था, यूँ लगता था जैसे यहाँ कभी कोई इंसान रहे ही ना हो। वो साकित निगाहों से वीरान पड़े लाउंज को देखे गया। वो से मंजर जैसे निगाहों के सामने लहराए थे। बीजान की जिंदगी से भरपूर आवाज़ें, अमल का इन सोफों पर पैर चढ़ाकर बैठना, सरदार बाबा की मुस्कुराहट, सब जैसे गुजरते वक्त की धूल में धूल बनकर रह गया था। इस लम्हे नूरा किचन से निकली तो इसे इस तरह साकित तो जामिद खड़े देखकर ठटक कर रह गई। आंखों में ढेरों बेयकीनी लिए वो चंद पल इसे देखे गई। इसने बामुश्किल मुस्कुराकर सलाम किया। वो जो इसकी मौजूदगी से मबहूत हुई खड़ी थी, सलाम करने पर यकदम जागी। फिर मजीद इससे कोई भी बात किए बगैर इसने रुख सरदार बाबा के कमरे की जानिब फेरा था। इसे बस अब जल्द अज जल्द बीजान और सरदार बाबा को देखना था। कमरे के बाहर पहुंचकर इसने जैसे ही दरवाज़ा बजाने के लिए हाथ उठाया तो इसका हाथ हवा ही में मुअल्लक रह गया। कोई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था। वो बेख्तियार चंद कदम पीछे हटा। नकाहत ज़दा से ज़मान निगाहों पर लगा चश्मा दुरुस्त करते बाहर निकल रहे थे। इसे यूं सामने देखकर वो भी जैसे ही अपनी जगह पर ठहर से गए थे। इन्हें लम्हे भर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था, और यकीन तो इससे भी नहीं आ रहा था कि ज़मान को ऐसे देखकर इतने कम अरसे ही में वो इतने बूढ़े और कमज़ोर लगने लगे थे कि वली के दिमाग में इनकी पिछली शख्सियत का असर धुआं बनकर फिजा में तहलील होने लगा। वली, इनके लब बेआवाज़ हिले थे। वो एक झटके से आगे बढ़ा, उनके गले लग गया। सरदार बाबा अब तक बेयकीन थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसकी मजबूत पुष्ट पर अपने कामते हाथ रखते हुए इनकी आंखें बिला इजाज़त बहने लगी थी, और फिर वो यकदम फूट कर रो दिए, बिल्कुल बच्चों की तरह। वो बौखलाकर इनसे अलग हुआ। सरदार बाबा वाकई बूढ़े हो गए थे। सरदार बाबा, क्या हुआ है? ये सब इतना बदला बदला क्यों है? सब ठीक तो है? और बीजान तो ठीक है ना बाबा?
सरदार बाबा ने चश्मा हटाकर अपने आंसू साफ किए और फिर चश्मा निगाहों पर जमा कर दोबारा इसे देखा। वो आंखें फैलाए इन्हें ही देख रहा था। इन्होंने इसे हाथ से थामा और अंदर कमरे की जानिब बढ़ गए, लेकिन फिर वो दरवाजे के पास ही रुक गए थे। सिर्फ वली था जो सुन होता वजूद लिए आगे बढ़ रहा था। बिस्तर पर कोई बहुत कमज़ोर सा वजूद लिए खातून लेटी हुई थी। इन्होंने आंखें मूंद रखी थी और चेहरा कमज़ोरी के बायस जर्दी माइल हो रहा था। आंखों के नीचे गहरे हल्के और भीगी भीगी सी पलकें, जैसे वो थोड़ी देर पहले ही रोकर सोई हों। हाँ, बिलाशुबा वो बीजान ही थी, इसकी चमकती तमकती सी बीजान। वो आहिस्ता से इनके बराबर में बैठा था। आहिस्ता से हाथ आगे बढ़ाकर इनका चेहरा छूना चाहा तो इन्होंने यकदम अपनी आंखें खोली। किसी के लम्स के एहसास ने इन्हें जैसे जगा दिया था और इसे देखते ही वो बेयकीनी के गहरे समुंदर से डूबकर उभरी थी। इसने इन्हें हाथ देकर उठाया और फिर बीजान को तो जैसे बरसों बाद कंधा मैसर आया था, इससे लिपट कर वो अपना हर गम रो लेना चाहती थी। वली मेरा बच्चा, मैंने तुझे बहुत याद किया। वली, तू कहाँ चला गया था हमें छोड़कर? हम पर क्या क्या सितम टूटे तू नहीं जानता वली। सब खत्म हो गया है, सब कुछ। वो इसके मजबूत हिसार में सिमट कर रोए जा रही थी और वो खामोशी से इन्हें थपक रहा था। इसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। इसका जहन माऊफ होता जा रहा था। हम बहुत थक गए हैं, ये दिन रात ऐसी तन्हाई में काटते वली, हम सब बहुत थक गए हैं। अब अगर तू आ गया है तो बच्चे हमें छोड़कर ना जाना। यहाँ तेरे जाने के बाद सब खत्म हो गया था, सब कुछ। इनकी हिचकियां बंदी तो इसने नरमी के साथ खुद से अलग किया। इनके बूढ़े से चेहरे पर हाथ फेरकर आंसू साफ किए। मैं अब आ गया हूँ बीजान, देखिएगा अब मैं सब ठीक कर दूंगा। सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इनके हाथों पर अपना चेहरा टिकाकर वो बेतहाशा रोई थी। जमान अब तक दरवाजे के साथ ही खड़े थे। फिर इसने बीजान को आहिस्ता से लिटाया, उठकर इन पर चादर डाली। वो निगाहें घुमा घुमा कर इसे देखती थी। इनकी निगाहें जैसे तरस गई थी इसे देखने के लिए। वो इनके पास ही बैठा था, इन सब से छोटी छोटी बातें करता रहा। दवाइयों का असर था कि वो कुछ ही लम्हों में सो गई थी। जबान ने इसका हाथ थामा और दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद करते इसे अपने साथ लाउंज में ले आए। वो इस सरसी खामोश हवेली को देखकर हैरान हुए जा रहा था। आखिर इसके जाते ही ऐसा क्या हो गया था कि सब कुछ इस कदर वीरानी में डूब चुका था। लाउंज में खामोशी से बैठे इसने बाप उड़ाती चाय को खाली खाली निगाहों से देखा और फिर सरदार बाबा की जानिब निगाह उठाई। इसकी निगाहों में मचलते बेशुमार सवालात को देखकर वो थका थका सा मुस्कुराए थे। बीबी तो खुश है ना अपने घर? इसने चाय का कप उठाते लहजे को हत्तुल इम्कान सरसरी रखा था, लेकिन फिर ज़मान की खामोशी पर चौंक कर इन्हें देखा। क्या खुश नहीं है? इसका दिल रुका था। वो इस घर से कभी रुखसत होकर गई ही नहीं थी वली, और ज़मान के जवाब पर इसे लगा गोया हवेली की पूरी छत इसके सर पर आ गिरी हो। इसकी पूरी दुनिया गोया एक ही नुक्ते पर साकित हो गई थी। हाँ वली, वो कभी इस घर से रुखसत होकर गई ही नहीं थी। निकाह तो तुम जानते हो हमारे यहाँ पर दोपहर ही में कर दिया जाता है, और रुस्ती तो शाम को कहीं जाकर होती है। निकाह हो जाने के बाद नफीस और बख्तियार अपने दोस्तों के हमराही में शहर गए थे, और जहाँ इसके दोस्तों ने इन दोनों को जबरदस्ती वो हराम शय पिलाई। सरदार बाबा जैसे बोलते बोलते थकने लगे। वो पत्थर का मुजस्मा बने बिना पल के झपकाए इन्हें देख रहा था। शहर से वापसी पर शराब के नशे में धुत होकर ड्राइव करते हुए नफीस का एक्सीडेंट हुआ और वो वहीं इसी मकाम पर मर गया। लेकिन साथ बैठे बख्तियार की टांगें हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो गईं। सब कुछ खत्म हो गया वली। हमारी जिंदगियों को तो पिछले 1.5 साल से जंग लगा हुआ है बच्चे। इस पर जैसे हर खबर पहाड़ बनकर टूट रही थी। समझ नहीं आता था कि कौन सा तासुर दरकार है और कौन सा नहीं। खाली खाली वजूद लिए वो जैसे पलके तक नहीं झपक रहा था। कैसी बेहिस औलाद मिली है ना मुझे वली, कि वो नफीस के किरदार और सरगर्मियों से बखूबी वाकिफ होने के बावजूद भी अपनी बहन को इससे ब्याह रहे थे। मेरी बेकसूर बच्ची को इस अजाब में फंसा रहे थे। ज़मानी ने अपनी औलादों का ऐसा दिल दहलाने वाला दुख क्या देखा, चारपाई पकड़ ली। बख्तियार के माजूर होने के बाद से बीमार रहने लगी है। तुम्हें अक्सर याद करके रो पड़ती थी, और मेरी तो जिंदगी भर की रियाजत पर मेरी औलाद ने लात मारी है वली। मैं तो अपने परखों अपने अल्लाह को मुंह तक दिखाने के काबिल नहीं रहा। इन्होंने आंखों से ऐनक हटाकर निगाहों में छाती गुलाबी सी धुंध को उंगलियों से मसला और ऐनक दोबारा से लगाकर इसे देखा, जो अब तक मुजस्मा बने इन्हें ही देख रहा था। इस एक्सीडेंट ने नफीस की जान ले ली और बख्तियार को जिंदगी भर के लिए माजूर कर दिया। वो खामोश हुए तो सारी हवेली में सन्नाटा छा गया। हवेली वाकई सन्नाटों में डूब गई थी। मेरी अमल, मेरी मासूम बच्ची वली,
इस हादसे के बाद इसका कोई रिश्ता नहीं आया। लोग इसे मनूस गर्दानते हैं कि वो निकाह होते ही अपने शौहर की जिंदगी को खा गई। न जाने लोग एक की सज़ा दूसरे को क्यों देते थे, एक के किए गए जुर्म की पादाश में दूसरे को क्यों तख्तादार पर लटका देते थे। पहले दुनिया इसके माँ बाप के किए की सज़ा इसे देती रही और अब नफीस के किए की सज़ा अमल को सुनाई जा रही थी। जाने माशरे की ये जहर आलूद सोच कब बदलेगी, कब लोग एक के किए की सज़ा दूसरे को देना छोड़ देंगे। वो तासुब से इन्हें देखता सोच रहा था, फिर गहरा सांस लेकर अंदर की कसाफत को कम किया। मुझे बख्तियार से मिलना है सरदार बाबा। और फिर वो चंद लम्हों बाद बख्तियार के लागर वजूद के सामने बैठा था। बेड पर हड्डियों का कोई ढांचा दराज था, इसकी टांगों पर एक चादर डली थी और बाकी सारा जिस्म बेहद कमज़ोर और बेबस था। तुम आ गए वली? इसकी थकी थकी सी आवाज़ इसकी समाज से टकराई थी। तुम अब कहीं मत जाना वली, इस हवेली को छोड़कर अब तुम कहीं मत जाना। इस हवेली को तुम्हारी ज़रूरत है वली। हमारी बदअमालियाँ इस हवेली की बरकत को खा गईं। हम इसी ज़ौम में रहे सारी ज़िंदगी के हम हलाल हैं, तो हर हराम काम हमारे लिए हलाल की हैसियत रखता है। लेकिन वली, इसकी आंख से आंसू फिसल कर कम पट्टी में जज़ब हुआ था। मैंने इस माजूरी के कड़े वक्त में जान लिया कि वली के हराम और हलाल से पैदा होना इंसान के बस में नहीं होता। हराम और हलाल तरीके से ज़िंदगी गुजारना इंसान के बस में होता है बस। लेकिन मेरी बदनसीबी देखो वली कि मुझे ये बात इस नकारा से वजूद के साथ समझ आई। बेशक इंसान ठोकर खाए बगैर नहीं संभलता, और ठोकरें खाने के बाद संभलने वाले तो पहले ही अपना सब कुछ खो चुके होते हैं। जैसे मैंने सब कुछ खो दिया। वो फूट कर अपनी स्याहकारियों को याद करता रो पड़ा तो वली ने गहरा सांस लिया। ये सब आखिर हो क्या गया था? ये वक़्त के बड़े बड़े फिरौन अब इस तरह से रोते बिलखते अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे थे। इसके सामने इसकी सारी रऊनत, सारा तकब्बर, सारा जाहो जलाल खाक हुआ पड़ा था। वली चुपचाप गहरे अफसोस के साथ इसे देखे गया। इसने जिनसे इंतकाम लेने के बारे में सोचा भी नहीं था, कुदरत ने इनके साथ ऐसा इंतकाम लिया था। बख्तियार की छोटी बेटी और उसकी बीवी की बेबसी देखकर इसे बहुत अजियत हुई थी। तकलीफ के एक गाढ़े से एहसास ने लम्हों में इसके जिस्म का अहाता किया था। लम्हों बाद अपनी आंखों से हाथ हटाने के बाद बख्तियार ने इसकी जानिब अपना लरसता हाथ बढ़ाया तो इसने बेख्तियार इसका हाथ थाम लिया। वो ज़ारो कतार रो रहा था। इससे सारी जिंदगी अब रोना ही था। बेड के साथ लगकर खड़ी शाजिया भी अपने शोहर की बेबसी पर आंसू बहाने लगी थी और वो खामोशी से इसका हाथ थामे बैठा हुआ था। मैं अमल बीबी से निकाह करना चाहता हूँ सरदार बाबा। इसका लहजा मजबूत था। जो बदअमल नहीं होते इनके लहजे अटल ही हुआ करते हैं। सरदार बाबा चंद लम्हे से देखते रहे और फिर इन्होंने इसे भींच कर गले लगा लिया। तुम मेरे बेटे हो वली। वो रो रहे थे। वो सिर्फ वली के गले लगकर रो सकते थे। वली ने गुलाबी पड़ती आंखें मूंद ली थी। इसे जैसे बरसों बाद करार आया था। इन्होंने इसे खुद से अलग करके इसका चेहरा देखा, वही मबहूत कर देने वाला खूबसूरत रोशन सा चेहरा। मैं इसका निकाह तुमसे करने में जरा भी देर नहीं करना चाहता वली। इनकी बात पर वो खुलकर मुस्कुराया। लेकिन मुझे चंद घंटों की मोहलत चाहिए सरदार बाबा, क्योंकि मुझे अपने कुछ लोगों को बुलाना होगा इस निकाह में। हाँ क्यों नहीं, जब तक मैं ज़मानी को जाकर बताता हूँ। खुशी से फूले भराए हुए लहजे में कहते हुए वो अपने कमरे की जानिब बढ़े तो उसने एक नज़र उठाकर इसके कमरे की बंद दरवाजे की जानिब देखा और जेब से मोबाइल निकालता बाहर की जानिब बढ़ा। यकदम ही जैसे वीरान पड़ी हवेली से खुशबू आने लगी थी। आने वाली सातों की खुशबू, बहुत से वक्त बाद अच्छे वक्तों की खुशबू, सांसों तक को मुअत्तर कर देने वाली मोहब्बत को पा लेने की खुशबू। जो बात इसने बरसों से ज़बान से ना कहने का तहिया कर रखा था, वो बात इसने लम्हों में कहकर जैसे सारी जिंदगी के इंतजार का हिसाब चुकता कर लिया था। और आज वो वाकई बहुत खुश था, क्योंकि अमल वो इसी के लिए तय की गई थी। इसे इसी का ही होना था, वो किसी और की कभी थी ही नहीं। बाहर की जानिब बढ़ते इसके कदमों की धमक में अब के आने वाली सातों की खुशियां धमक रही थीं। क्या वक्त ऐसे भी पलट जाता है, ऐसे यूं लम्हों में इसे भी जल्दी पलट जाना है। हाँ वली, असगर की मसरूफ सी आवाज सुनाई दी थी इसे। असगर यार, मैं शादी कर रहा हूँ। हैं? शादी के लिए एक अदद लड़की की भी जरूरत होती है मोहतरम, वो कहाँ से लाओगे? वो इसी वक्त वर्कआउट करके फारिग हुआ था और अपनी गर्दन पर आया पसीना तौलिए से साफ करता पानी की बोतल मुंह को लगा गया था। लड़की है, मैं अमल बीबी से शादी कर रहा हूँ। दूसरी जानिब असगर को जोरदार खांसी आई थी। इसके मुंह से सारा पानी किसी फव्वारे की सूरत उबलकर बह निकला था। क्या कहा? इसने बोतल टेबल पर रखकर बेयकीनी से फोन कान से हटाकर देखा था। इसे लगा जैसे वली का दिमाग चल गया है। सच में आज शाम है निकाह।
दूसरी जानिब वली जैसे मुस्कुराया था। 1 मिनट, मुझे समझाओ, क्या कह रहे हो तुम? असगर, मैं कह रहा हूँ कि मेरा निकाह है, आज शाम तुम जल्दी से सफ़ेद हवेली पहुँचो, और हाँ, हसन सर को मैं खुद बताऊँगा, तुम मत बताना। अबे साले, ठहर तो सही। लेकिन वली फ़ोन रख चुका था। वो जल्दी से अपने कमरे की जानिब भागा। इसे भी अपना कुर्ता भी इस्त्री करना था। दांत पीसता वो उजलत में अपनी वार्डरोब खोले अब कुर्ता तलाश कर रहा था, और एक तो इसकी वार्डरोब जिसमें हमेशा जलजला ही आया रहता था। दूसरी जाने अपने ऑफिस में बैठे हसन साहब सामने बुरजमान किसी अधेड़ उम्र से वकील से केस डिस्कस कर रहे थे कि यकदम फोन बजने पर इस तरफ मुतवज्जा हुए। ऐसे मीटिंग के दरमियान वो फोन नहीं उठाया करते थे, मगर वली की कॉल को नजरअंदाज करना इन्हें आता ही नहीं था। हाँ वली, कहो। अगली बात सुनकर वो सीधे हो बैठे। अच्छा, ओहो, कब तक है निकाह? आज शाम। चलो बस ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। फोन कान से हटाकर मुस्कुराते हुए अब वो कोई नंबर डायल कर रहे थे। इन्हें जैसे ये सब भूल गया था कि कोई बाकर साहब इनके सामने बैठे हैं। इन साहब ने इन्हें नासमझी से देखा। हसन ने चेहरा उठाकर इन्हें देखा और फिर उजलत में उठ खड़े थे। बाकर, हम इस केस को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मुझे एक जरूरी जगह पहुंचना है, मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। फोन कान से लगाते वो जल्दी से बाहर की जानिब बढ़े तो हवनक बने बाकर साहब भी फाइलें समेटते इनके पीछे बाहर भागे। कांता बस अभी स्टाफ रूम से निकलकर जैन को लेने इसकी क्लास की जानिब बढ़ ही रही थी कि इनके हाथ में पकड़ा फोन यकदम बज उठा। धूप के बायस आंखें सुखेड़कर इन्होंने फोन की स्क्रीन पर हाथ का छज्जा बनाकर रखा और फिर वली का जगमगाता नंबर देखकर जैसे इनके चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगी थी। इन्होंने कॉल रिसीव की और अंदर की जानिब बढ़ी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे ठहर भी गईं। आंखें फैल गई थी और लब वार थे। कब है निकाह और ऐसे अचानक कहाँ पर है? इन्हें समझ नहीं आया कि क्या पूछना चाहिए। अमल जमान। ओके, मैं बस निकलती हूँ कुछ देर में। फोन कान से हटाकर पूरे दिल से मुस्कुराती हुई वो जैन को लेने इसकी क्लास की जानिब भागी थी। वली और अमल का निकाह, या अल्लाह, इनका निकाह, इतनी सारी खुशियाँ, इनका बस ना चलता था उड़कर सफेद हवेली पहुंच जाए। वो जैन को लिए तेजी के साथ कदम उठा रही थी और जैन गर्दन उठाए इनसे एक ही सवाल कर रहा था। मामा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, वली की शादी है। शादी? वो ही ना जिसमें दुल्हन होती है। इसे बस शादी की यही एक निशानी याद थी। तेजी के साथ कदम उठाती कांता हंस पड़ी। मोहसिन, जो अपने कैबिन से ब्रेक टाइम में काफी पीने निकला था, बचता फोन जेब से निकालकर अब चलते हुए साथ साथ काफी के घूंट भी भर लेता था। जी वली सर। अंदाज की लापरवाही जैसे पल में सिमटी थी। काफी इसकी बेवकत की कॉल पर हाथ से छोड़कर गिरते गिरते बची। शादी? लेकिन ये किस तरह का इनविटेशन है? काफी झुककर एक टेबल पर रखते वो पूरी तरह से फोन की जाने मुतवज्जा था, लेकिन अगले ही लम्हे इसे भी काफी उठाकर भागना पड़ा, क्योंकि वली का निकाह तो 2 घंटों बाद ही। इसने मुस्कुराकर एक आखिरी फोन कॉल मिलाते हुए दूर सब्जाजार को देखा था। जासिम, जो इसी वक्त सर्जरी रूम से एक तवील और थका देने वाली सर्जरी करके निकला था, ऑफिस में बजता फोन देखकर ग्लोव उतारता इधर पलटा। हाँ वली। इसने झुककर एक फाइल भी उठा ली थी। क्या? कब? लेकिन इतनी जल्दी? अच्छा, मेरी बात तो। मगर अजल का अक्खड़ सा इंसान इसे मजे से दावत देकर फोन रख चुका था। इसने गुस्से से फोन को घूरा और अपना कोट उतारकर हाथ में लेता बाहर की जाने बढ़ा। ये वली और असगर दोनों किसी दिन ऐसी नागानी खबरें देने पर मार खाएंगे इससे। कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठते अब वो गाड़ी घर की जानिब मोड़ रहा था। वो बिलाशुबा इसका वर्किंग डे था जिसे वली अहमद अच्छी तरह से बर्बाद कर चुका था, लेकिन इसे फिर भी पता था कि वो सब जरूर आएंगे, इसकी खुशियां देखने तो जरूर ही। मुस्कुराकर सर झटकते अब वो अंदर बढ़ रहा था। इसके अंदाज का अजली सा बिजारपन और स्पाट सा तासुर जैसे इस थोड़े से अरसे में सब्जाजार की फिजा में तहलील होकर गुम हो चुका था। और इस बार जो वली था वो मुस्कुरा रहा था। वो जो मुस्कुराने वाली किसी बात पर भी नहीं मुस्कुराया करता था, अब इस तरह मुस्कुरा रहा था बगैर किसी बात और बगैर किसी वजह से। अमल ने ठंडी पड़ती जोहर में नमाज अदा की और खामोशी से जाए नमाज पर बने फूल बूटों को देखे गई। वही जाए नमाज पर नमाज पढ़कर बैठे रहने की आदत। इसकी शहद रंग आंखें खामोशी के ज़ेर असर लगती थी और वजूद पर जमा ठहराव जैसे इसने सालों की तवील मेहनत से हासिल किया था। हल्के गुलाबी से रंग के शलवार कमीज में मलबूस इसका दमकता सा रूप आज भी इतना ही हसीन था जितना 1.5 साल पहले था। वही कांच सा वजूद, मनमोहनी सी सूरत और सुनहरी पलकों की बाढ़ से सजी आंखें। इसने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर ना चाहते हुए भी सबसे आखिर में वली के लिए दुआ करती जाए नमाज समेट कर उठ खड़ी हुई। पिछले 1.5 सालों में इसका जितना वक़्त अपने कमरे में गुजरा था, इतना वक़्त तो शायद इसने कहीं गुजारा हो। अपने हल्के नम बालों को दुपट्टे से आज़ाद करते हुए इसने सूख कर
रेशम होते बालों में बुरश फेरा। अगले ही लम्हे इसके कमरे का दरवाजा बजा तो वो चौंक कर पलटी। सामिया दरवाजे खोले खड़ी थी। इसे ऐसे देखकर वो खुशगवार सी हैरत से पलटी। सामिया, यूं ऐसे अचानक? सब खैरियत तो है ना? इसे इतनी हैरत नहीं होती अगर जो वो इससे सिर्फ 2 दिन पहले ही मिलकर ना गई होती। सामिया तेजी से आगे बढ़ी और इसे गले लगा लिया। अमल नासमझी से मुस्कुराई। मुबारक हो। इसे दोनों कंधों से थाम कर सामिया ने नम आंखों के साथ कहा तो इसने अब के वाजिया नासमझी से इसे देखा। क्या हुआ है सामिया, और मुबारक किस बात की? सामिया ने इसे एक बार फिर जोर से गले लगाया और अपना पर्स, चादर वगैरह आगे बढ़कर इसके बेड पर रखा और वो अब तक इसे नासमझी भरी नजरों से देख रही थी। तुम वली से कितनी मोहब्बत करती हो अमल? इसने एकदम ऐसा सवाल किया तो अमल ने हैरत से इसे देखा। ये किस तरह का सवाल है सामी? तुम बताओ ना, कितना चाहती हो इसे? मैंने कब कहा कि मैं ऐसे चाहती हूँ? मैं नफरत करती हूँ उससे। इसने कड़वाहट से कहकर तेजी से रुख फेरा तो सामिया शरारत से लब दबाकर इसकी जानिब बढ़ी। सच में कितनी नफरत करती हो इससे? इसके पीछे से चेहरा जरा निकाल कर मासूमियत से पीछा तो अमल ने दांत पीस कर इसे देखा। बहुत बहुत नफरत करती हूँ मैं उससे, बहुत ज्यादा, बहुत से भी ज्यादा। इसने बालों में ब्रश तेजी के साथ चलाकर इन्हें समेट कर जूड़े में लपेटने के लिए समेटा था। चेहरा गुस्से सुर्ख होकर दहकने लगा था। आंखें जब से नरम पड़ने लगी थी। फिर भी कितनी? अब कि वो इसके सिंगार आईने पर टिक कर बैठी इसका गुस्सा चेहरा देख रही थी। अमल ने ब्रश टेबल पर पटका। मैं इससे हद दर्जा नफरत करती हूँ, हद से भी ज्यादा, हर हद से ज्यादा। अच्छा, सामिया ने समझकर गर्दन हिलाई। अमल अब बालों को तेजी से बल देती जूड़ा बना रही थी। और अगर मैं ये कहूँ कि वली अमन मर जाए तो तुम क्या करोगी? इंतहाई मासूमियत से सवाल किया तो अमल के चलते हाथ यकदम साकित हो गए। तड़प कर शहद रंग आंखें उठाई। सामिया, इसे जैसे अंदर तक तकलीफ हुई थी। लम्हों में दिल कई गहराइयों में डूबकर उभरा था। यह ख्याल ही जानलेवा था कि अगर इसे कुछ हो गया तो, और इसके आगे तो सोचना भी इसने खुद पर हराम कर रखा था। यकदम इसे बाहर से शोर की आवाज सुनाई दी तो इसने सामिया को नासमझी से देखा। सामिया मुस्कुरा रही थी जैसे सब जानती हो। नीचे क्या कोई आया हुआ है? बालों को जूड़े में लपेट कर इसने इससे एक बार फिर पूछा तो सामिया ने कंधे उचकाए। इस पर एक दफा हो जाओ वाली निगाह डालकर इसने कमरे का दरवाजा खोला और दुपट्टा शानों पर फैलाती बाहर निकली। लेकिन अगले ही लम्हे जैसे ठंडे सफेद मार्बल पर रखे इसके कदम बर्फ हो गए थे। सफेद शलवार कमीज में मलबूस बिलाशबा वो वही था, वही जो अपने इर्तिकाज ही से लोगों की सांसें मुसख्खर कर लेने का फन रखता था। हाँ, वो वही तो था कि जिसे देखने के लिए इसने हर रोज खामोश दुआएं मांगी थी, बस इसे एक बार देखने के लिए। और अब वो लाउंज में खड़ा सरदार बाबा के गले लग रहा था। साथ ही बख्तियार भी व्हील चेयर पर बैठा इसे आसूदगी से देखता इसकी किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। बीजान, हाँ इसकी बीजान जो अपने बिस्तर से लम्हा भर के लिए भी नहीं उठ सकती थी, अब मुलाजमीन को तेजी से हिदायत देती दौड़ा रही थी। एक इसके आ जाने से हवेली में जैसे जिंदगी लौट आई थी। यकायक दाखिली दरवाजे से कांता दाखिल होती हुई नजर आई। इसने हैरत से इनके सजे संवरे से रूप को देखा था। अब वो लाउंज में बीजान से गले मिल रही थी, साथ साथ झुककर वली जैन को प्यार भी कर रहा था। इसके कांपते कदम यकदम पीछे को हटे थे। निगाहों के सामने बार बार कुछ धुंधला जाता था। इसने देखा कि शाजिया और कांता अब बीजान को बामुश्किल ज़ेनों से चढ़ाकर ऊपर ला रही थी। इसकी पतराई हुई निगाहों के सामने जैसे सब कुछ बहुत तेजी के साथ हो रहा था। वो अपने कमरे की जानिब भागी। सामिया सुकून से इसका मेकअप किट निकाले सब सामान सिगार में इस पर सजा रही थी। वो बेयकीनी से इसके करीब चलती आई। ये सब क्या हो रहा है सामी? वली यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन सामिया को कोई जवाब देने का मौका ही ना मिला। कांता और शाजिया बीजान को लिए इसके कमरे में दाखिल हो रही थी और वो बेतरह चौंक कर इनकी जानिब पलटी थी। बीजान ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया, इसके सर पर हाथ फेरकर रोते हुए इसे ढेर सारी दुआओं से नवाजा। वो बुत बनी बस इन्हें देखे जा रही थी। तेरा निकाह है अमल वली के साथ। साएं साएं होते वजूद के साथ वो इनकी खुशी से लरसती आवाज को सुन रही थी। आंखों से बहते आंसू और खिला सा दमकता चेहरा देखकर इसके सारे लफ्ज जैसे लबों पर ही दम तोड़ गए थे। सारे दलाइल जैसे इससे गुम हो गए थे, खो गए थे। बीजान शाजिया के साथ वापस पलटी तो कांता ने आगे बढ़कर इसे मुबारकबाद से नवाजते हुए सिंगार आईने के सामने बिठाया। वो खाली खाली सी बैठ गई।
सामिया ने इसके जुड़े में बंधे बालों को खोला तो स्याह आबशार जैसे कमर पर बिखरती चली गई। वो बिलाशुबा इस साल की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनने वाली थी, वली की दुल्हन, इसकी मनकूहा। आईने के सामने जालिम शहजादी अपने तमाम तर हुस्न के साथ जगमगाती हुई बैठी थी। कांता, सामिया और अब तो शाजिया भी इसे तैयार करने में मशगूल थी। सब कुछ जैसे लम्हों में ही बदलकर क्या से क्या हो गया था। यके बाद दीगरे बहुत सी गाड़ियां आगे पीछे हवेली में दाखिल हुई थी। इनमें से पहली गाड़ी जासिम, दूसरी मोहसिन और सबसे आखिरी असगर की थी, जिसमें हसन भी इसके साथ ही थे और मुसलसल मजे से ठंडे अंदाज में इसे जवाब देते मजीद गुस्सा दिला रहे थे। आज असगर को देर भी इन्हीं की वजह से हुई थी, जिस पर पूरे रास्ते खोलता वह इनसे बहस करता आया था। अभी भी पोर्च में गाड़ी रुकी ही थी कि ज़मान बाहर निकले। निखरे निखरे खुशी से दमकते चेहरे के साथ आगे बढ़कर वो मेहमानों से बगलगीर हो रहे थे। इनकी हमराही में मौजूद मुलाजमीन मर्दों को मर्दाने में ले जा रहे थे। हसन शाह से गले मिलते हुए जैसे इन्हें बहुत पुरानी सी दोस्ती याद आ गई थी। वली के अस्पताल में एडमिट होने के वक़्त में भी वो इनसे मिल चुके थे और तभी से दोनों की बहुत दोस्ती हो गई थी। इसका मूड यकदम ही बहाल हुआ था। गाड़ी से बाहर निकलकर वो भी ज़मान की जानिब बढ़ा। इसे मुस्कुराकर गले लगाते हुए वो हसन को लिए अंदर बढ़े तो इसने भी मुस्कुराकर कदम इनके पीछे उठाए। दाखिली दरवाजे से मर्दाने की जानिब जाते इसने इन दोनों को देखा और जैसे ही कदम इस तरफ को मोड़े तो एक बहुत क्यूट सा बच्चा इससे आ टकराया था। इसके पीछे ही कोई लड़की भी दौड़ती आ रही थी। जैन, ओ आई एम सॉरी, कांता ने यकदम कहा तो इसकी उठी निगाह गोया ठहर कर रह गई। वो नफीस सा जूड़ा बांधे बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी और वो बच्चा भी बिल्कुल इसी जैसा लग रहा था। इसने चेहरा झुकाकर शरारत से मुस्कुराते हुए बच्चे को देखा और फिर इसे, जैन इधर आओ और सॉरी करो अंकल से। इसने बच्चे को हाथ से पकड़कर पीछे किया और फिर माजरत ख्वाना से इसे देखा। असगर बेसाख्ता मुस्कुराया था। अरे नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, इसने कहकर रुख मोड़ना चाहा तो जैन अगले पल फिर से इसकी टांगों से लिपट गया था। इसने चौंक कर फिर से चेहरा झुकाया। कांता भी इसे पकड़ने के लिए एक बार फिर से आगे बढ़ी थी। अंकल मामा को कहकर जाएं कि वो मुझे आपके जाने के बाद डांटेंगी नहीं। मामा कहती हैं कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ आपसे गलती से टकराया था, फिर भी मामा मुझे डांटेंगी। असगर ने चौंक कर एक दफा फिर से इस लड़की को देखा। क्या वो इस बच्चे की माँ थी? इसने मुस्कुराकर जैन के स्याह बालों में हाथ फेरा। इसी पल वली मर्दाने से निकला था। इन्हें यूं साथ खड़ा देखकर इसी तरफ आ गया। असगर, इसने इसे आवाज दी तो वो सब कुछ भूलकर इसकी जानिब पलटा और इससे भरपूर तरीके से गले मिलते इसने इसे मुबारकबादों से नवाजा। कांता ने असगर की जानिब देखा था। अब के अच्छा तो ये था वली का दोस्त, जिसका वो अक्सर जिक्र किया करता था। बीजान कहाँ है कांता? और अब के इस लड़की को चौंक कर देखने की बारी असगर की थी। अच्छा तो ये थी कांता, वली के दोस्त की बीवा। वो किचन में है, बुलाती हूँ अभी। और जैन तुम भी चलो। वो उलझकर पलटी तो असगर की निगाहों ने पीछे तक इनका ताकुब किया। वली ने भी इसके महब से इर्तिकास को महसूस करके इसी समय देखा था और फिर समझ कर ना समझी से इसकी जानिब देखा। वो बेवा हैं और सिंगल मदर भी। इसने जैसे इसे एहसास दिलाया था। असगर अपनी महवियत पर बुरी तरह चौंक कर जागा, फिर इसकी जानिब देखा। आज तुम्हारा दिन है, अपने बारे में मैं फिर कभी सोच लूंगा। चलो, और एक जरा बात तो बताओ मुझे, ये आखिर कौन सा तरीका है निकाह करने का? सब कुछ बस किसी अफ्ताद की तरह ही करना तुम, कभी ढंग तरीके से काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं तुम्हें। वो गुस्सा करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन वली का खिला सा चेहरा देखकर इसे कुछ भी कहने का दिल नहीं चाह रहा था। इसका दोस्त खुश था, बहुत खुश था, बहुत से भी ज्यादा। इसने इसकी गुद्दी पर हल्का सा मारा तो वली ने इसे हैरत से देखा। ये इसलिए था क्योंकि तुम हमेशा की तरह आज भी बहुत ही ज्यादा बकवास हो। इसकी बात पर अपनी गुद्दी सलाता वली हंसा था। ये तुमने आने में देर क्यों कर दी? वो दोनों अब मर्दाने की जानिब बढ़ रहे थे। असगर ने जलकर हसन की जानिब देखा। वो ज़मान से बातें कर रहे थे। साथ ही मोहसिन, जासिम और नवाज बहुत तरीके से बैठे इन दोनों की बात सुन रहे थे। बड़ों की बादब सी महफिल, यू नो। ये जो सर है ना तुम्हारे, इनकी वजह से लेट हुआ हूँ मैं। जनाब की तैयारी खत्म नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे नहीं अपने निकाह की तैयारी कर रहे हूँ। इसकी आखिरी सरगोशी पर वली ने अपनी हंसी बामुश्किल रोकी थी। असगर कभी नहीं सुधर सकता था। कुछ ही देर बाद मौलवी साहब मर्दाने में दाखिल हुए तो सारी खुशगपियां सिमट गईं। निकाह के लिए वली को बिठाया गया। इसके सारे अपने इसके आसपास थे। असगर, हसन, जासिम, नवाज जो कुछ देर पहले ही आया था वो भी साथ ही खड़ा था। मोहसिन, सरदार बाबा, हाँ, इसके सारे अपने इसके साथ थे। आज इसे किसी ने
कोई ताना नहीं दिया था। आज इसकी कोई किसी ने नाजायज़ औलाद होने की वजह से अजाब का शिकार नहीं किया था। आज इससे कोई इसके बाप का नाम पूछकर इसे जिल्लत का निशाना नहीं बना रहा था। आज वाकई इसका दिन था, वो दिन जो बहुत तवील और कठिन इंतज़ार के बाद इस पर वारिद हुआ था। निकाह नामे पर साइन करते हुए इसके कानों में बहुत सी आवाज़ों की बाज़गश सुनाई देती थी। मरोगे तुम, एक दिन कुत्ते की मौत मरोगे। आस्तगी से निकाह नामे के वर्क उल्टे जा रहे थे। मैं भी इसी बात को यकीनी बनाऊंगा वली अहमद कि तुम भी किसी जनाजे के बगैर मरो। इसने संजीदगी से निकाह नामे पर साइन करते हुए नवाजों को आज झटकने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, इसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। तुम वली, तुम हरामजादे हो। इसकी गर्दन में गिल्टी उभर कर मालूम हुई, मगर वो बिना तासुर के साइन करता जा रहा था। तुम्हें जिंदा नहीं रहना था वली, तुम्हें तो मरना था। मौलवी साहब ने इसका निकाह नामा लपेटा तो इसने कलम आहिस्ता से टेबल पर रख दिया। नस्वारी आंखों वाला लड़का अब की आंखें बंद करके सबके साथ दुआ मांग रहा था। जैन भी इन सब की देखा देखी हाथ उठाए दुआ मांगने लगा। आखिरकार दुआ खत्म होने के बाद सबसे पहले हसन वली की जानिब बढ़े थे। मुबारक सलामत का शोर उठा। सारी हवेली जैसे चहकने लगी थी। 1.5 साल पहले जिस दिन वो यहाँ से गया था, इसी दिन इस हवेली पर वीरानियों के डेरे पड़ गए थे। और आज 1.5 साल बाद जब वो इस हवेली में दाखिल हुआ तो नहीं जानता था कि इसका निकाह अमल से हो जाएगा। इसका निकाह हाँ अमल से हो जाएगा, इतनी आसानी से, किसी भी जिल्लत और जात पात के झगड़े के बगैर। असगर से गले मिलने के बाद इसने रुख सरदार बाबा की जानिब किया। वो इसे नम आंखों से देखते मुस्कुरा रहे थे। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी अमल का रिश्ता तुमसे हो जाए, लेकिन पुरानी रिवायत की बेड़ियों ने मुझे जकड़ रखा था वली। अगर जो आज तुम खुद से इसका हाथ ना मांगते तो शायद मैं खुद इसका हाथ तुम्हारे हाथ में थमा देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर अमल की कोई हिफाजत कर सकता है, अगर इसे कोई संभाल सकता है इज्जत और जिम्मेदारी के साथ, तो वो तुम हो वली। वो तुम हो, वो इंसान तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसके गले से लगे वो खुशी से कांपती आवाज में कह रहे थे और वली दम बखुद सा इनके सारे इंकिशाफात सुन रहा था। जिंदगी कभी इस पर इतनी मेहरबान भी हो सकती थी, इसने सोचा नहीं था। हाँ, इसने ये सब वाकई कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। दूसरी जानिब अमल पर सुर्ख सा सितारों से सजा दुपट्टा डाला गया तो इस जैसे इसकी तो सारी दुनिया ही मोहब्बत के सुर्ख से रंग में डूब गई। इसका लिबास मौके की मुनासबत से ऑफ वाइट था। इसे ज्यादा तैयार तो नहीं किया गया था, मगर कानों में लटकते भारी अवेजे और बालों पर टिका एक अदद झूमर इसके मोम से चेहरे को बेहद दमका रखा था। इसने ठंडे पड़ते हाथों के साथ निकाह नामे पर साइन किए और फिर अमल जमान हमेशा हमेशा के लिए वली अहमद के निकाह में चली गई। वो आज पूरी तरह से इसकी हो गई थी। बीजान ने झुककर इसे गले लगाया और फिर रोते हुए इसे जिंदगी भर की दुआएं देने लगी। इनकी हर दुआ पर कमरे में मौजूद हर लड़की ने आमीन कहा था कि अब बस तलखियों के दिन खत्म, अब खुशियों के दिन शुरू थे। सरे शाम ही वली ने जमान से रुखसती का मुतालबा किया तो बिना किसी पसो पेश के अमल की रुखसती की इजाजत इसे दे दी गई। अमल को पूरी सफेद चादर से ढका गया था। इस चादर से नीचे इसका सफेद पैरों को छूता फ्राक लचक रहा था। बीजान ने इसे गले लगाया, फिर वो झुककर भाजी से प्यार लेने लगी। निसार भी साथ ही खड़ा था, इसे गले लगाकर थपक कर दरवाजे तक लाया। सब इसके साथ साथ ही कदम उठाते आगे बढ़ रहे थे। फिर वो आगे बढ़कर सामिया से मिली। शाजिया और अमीना से भी गले लगकर मिलते वो रोने लगी। इन सब ने बहुत कुछ एक साथ देखा था। सबसे आखिर में दरवाजे पर जमान खड़े थे। इन्हें देखकर वो रह नहीं पाई थी, बेख्तियार रो पड़ी। जमान ने इसका सर थपका और फिर इसे साथ ही लगाते मजीद आगे तक लाए। बाहर कांता जैन को पकड़े खड़ी थी। इन्हें वली के साथ ही जाना था, क्योंकि इनका और वली का अपार्टमेंट एक ही बिल्डिंग में था। इसने एक आखिरी बार जमान को देखा और फिर कांता की हमराही में अगली सीट पर जा बैठी, वली के साथ वाली सीट पर। वली अब भी जान और सरदार बाबा से सर पर प्यार ले रहा था। फिर वो इस कार की जानिब चला आया। इसके साथ ही इसके मेहमान भी निकले। इसकी गाड़ी के पीछे असगर, जासिम और मोहसन तीनों की गाड़ियां रवां थी। दाखिली दरवाजे पर खड़े जमान और बी जान अपनी बहती आंखें साफ कर रहे थे। शाजिया और मीना भी आखिर तक इन जाती गाड़ियों को हाथ हिलाकर रुखसत कर रही थी। उतरती शाम में आज कहीं किसी दुख, किसी मायूसी का एहसास नहीं था। आज की शाम तो बस मोहब्बतों के बहुत से पैगामात लेती इन पर वारिद हुई थी। आज की शाम हाँ हवेली के मकीनों की सबसे ज्यादा हसीन शाम थी, खुशियों और चाहतों से भरी। साथ बैठी चादर में लिपटी लड़की सिमट कर खिड़की से लगी बैठी थी। वली ने मुस्कुराकर इसके सिमटे से नाजुक वजूद को देखा और फिर सामने देखने लगा। वो जानता था कि वो इससे नाराज थी, बेतहाशा और बेहिसाब, लेकिन अब एक गहरी और तवील रात का अख्तिताम हुआ चाहता था। इसीलिए इसे किसी भी किस्म का खदशा नहीं था
کیونکہ ہر خدشہ اس کے ساتھ ہی دم توڑ گیا تھا، اور اگر کچھ رہ گیا تھا تو وہ اس کا ساتھ اور اس کی پھوار سی محبت، جسے محسوس کرنے کے لیے اس کا دل برسوں مچلتا رہا تھا۔ گاؤں سے نکلتی بہت سی گاڑیاں اپنی اپنی منزلوں کی جانب رواں تھیں۔ اپارٹمنٹ میں قدم رکھتے ہی امل نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ خوبصورتی اور ڈھنگ سے سجا بہت پیارا سا اپارٹمنٹ تھا، 2 بیڈ رومز، 1 گیسٹ روم، ٹی وی لاؤنج اور چھوٹے سے کچن پر مشتمل۔ اس کی چھوٹی سی دنیا، اس کا چھوٹا سا گھر۔ کانتا اس کے ساتھ اندر تک آئی تھی۔ اس نے چادر اتار کر صوفے پہ ڈالی۔ کانتا بس اسے خدا حافظ کرتی پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس نے بے ساختہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک لیا۔ وہ چونک کر رکی تھی۔ فکر مت کرو، میرا اپارٹمنٹ اس سے نیچے والے فلور پر ہے، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، میں نیچے ہی ہوں، مجھے فون کر لینا۔ اور ہاں امل، جو ہوا اسے بھول جاؤ، کیونکہ بری ساتیں بھول جانے ہی میں انسان کے لیے آفت رکھی ہوتی ہے۔ اس کا مومی سا چہرہ تھپکا کر اور پھر اسے مسکرا کر گلے لگایا۔ اس کی آنکھیں خواہ بھیگ گئی تھیں۔ پھر ولی دروازے میں زین کو لیے نمودار ہوا تو اس نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کر شانوں پر پھیلایا۔ وہی بہت دنوں بعد اسے دیکھنے کے بعد نروس ہونے والی عادت۔ کانتا سے چند ایک باتیں کرنے کے بعد وہ انہیں ان کے اپارٹمنٹ تک چھوڑنے گیا تھا تو وہ بھی بیڈ روم میں چلی آئی۔ ایک ہی دن میں اس پر اتنا سب کچھ گزر گیا تھا کہ کسی چیز پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ ابھی آنکھیں کھولے گی اور یہ خواب چھن چھن کرتا ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ اس نے سنگار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کانوں سے بھاری جھمکے اتارے اور ابھی اس نے بالوں میں اٹکے جھومر کو چھوا ہی تھا کہ ولی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ اپارٹمنٹ کا دروازہ بند کرتا شاید اسی طرف آ رہا تھا۔ اس نے بے طرح دھڑکتے دل کو نظر انداز کیا اور جی کڑا کر کر اپنا جھومر جیسے ہی اتارنے لگی، ولی نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس نے اسے اچھی طرح سے نظر انداز کیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں امڑتی مسکراہٹ دبا گیا، گال میں پڑتا گڑا لمحے بھر کو ابھرا تھا۔ امل بی بی کھانا کھا لیں آ کر۔ واٹ؟ تو کیا اب وہ شادی کے بعد بھی اسے امل بی بی کہے گا؟ اسے سخت اعتراض تھا اس طرز سے تخاطب پر، مگر پھر بھی اسے نظر انداز کرتی وہ آرام سے پلٹی اور جھومر اتارے بغیر دروازے تک آئی۔ وہ اب تک دروازے میں کھڑا تھا۔ اب آپ ہٹیں گے تو ہی میں جا سکوں گی، اسے دیکھے بغیر کہا۔ اوہ! ولی جیسے چونک کر راستے سے ہٹا تھا، وہ آگے بڑھی اور کچن کی جانب چلی آئی۔ کچن میں گول میز پر پیک ہوا کھانا رکھا تھا۔ اس نے آستینیں چڑھائیں اور پھر کچن میں مگن ہو کر پلیٹیں ڈھونڈ ڈھانڈ کر ٹیبل پر رکھی، سنک سے ہاتھ دھوئے اور پھر پلیٹوں میں کھانا نکالنے لگی۔ گاؤں سے جب نکلے تھے تو مغرب کی نماز ہو چکی تھی۔ شہر پہنچتے پہنچتے اب عشاء کی اذانیں سنائی دینے لگی تھی۔ ولی منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوتا کچن میں آیا تو ایک پل کو اسے اپنے کچن میں کام کرتا دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ وہ اپنے جھومر سے بے نیاز کھانا نکال کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ شاید اسے یہ بھول گیا تھا کہ اس کے بالوں پر کوئی جھومر بھی لگا ہے۔ اس نے اسے اس طرح کھڑا دیکھا تو چونک کر رہ گئی، چہرے کو حتی الامکان نارمل رکھا۔ کھانا کھا لیں آ کر۔ اس نے جیسے اس کی محویت کو توڑا تھا۔ ولی نے گہرا سانس لیا اور پھر گول ٹیبل کی جانب چلا آیا۔ ایک نظر پھر سے اسے دیکھا۔ ہاف بندے بالوں میں اس کا دمکتا چہرہ ہمیشہ کی طرح لگ رہا تھا، پاکیزہ، معصوم اور ذرا غصہ۔ ایک دو نوالوں کے بعد ہی وہ ٹیبل سے اٹھنے لگی تو ولی اسے روکے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنا سا کھانا؟ میں اتنا ہی کھاتی ہوں۔ شہد رنگ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ولی ان نگاہوں سے پگھلنے لگا تھا۔ تھوڑا تو اور کھا لیں، مجھے بھوک نہیں، اکھڑ سا کہا اور اٹھ گئی۔ ولی نے بے اختیار ہی گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی عادتوں کو بھلا وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے برتن سمیٹے اور سنک میں جمع کیے۔ وہ ایسے کام کر رہی تھی جیسے ہمیشہ ہی اسی کچن میں کام کرتی رہی ہو۔ ولی بیڈ روم کی جانب بڑھا اور پھر واپس پلٹا تو اس کا لباس تبدیل تھا۔ اس نے جینز پر سیاہ سویٹر پہن رکھا تھا جس کے وی گلے سے سفید بٹن شرٹ کے کالر جھلک رہے تھے۔ ایک نظر اسے کچن میں کام کرتا دیکھا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ جب وہ واپس پلٹا تو دیکھا وہ ابھی تک کچن کا سامان سمیٹ رہی تھی۔ آخری پلیٹ دھو کر جھٹکتے عمل کو اپنے پیچھے اس کی چاپ سنائی دی تھی، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، اب کہ وہ فریج کے دروازے سے لگا ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹنا چاہا لیکن نہیں پلٹ سکی۔ نل سے ٹپکتے آخری قطروں کو دیکھے گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کی مدھم سی آواز اسے سنائی دی تھی، اب کہ شاید وہ اس کے ساتھ سلیپ سے لگ کر آ کھڑا ہوا تھا، ایسے کہ عمل کا چہرہ سنک کی جانب تھا اور ولی کا اس کے مخالف۔ میں ٹھیک رہوں یا نہیں اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا تھا ولی؟
اس نے سر نہیں اٹھایا، چہرہ جھکائے بے حد کمزور آواز میں کہا تھا۔ ولی چند پل کچھ نہ بولا۔ آپ رونا چاہتی ہیں؟ نہ جانے اسے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے حلق میں بہت سے آنسو اٹکنے لگے تھے۔ ساری ہٹ دھرمی، سارا طیش اور اس سے سارے شکوے جیسے کہیں دور جا سوئے تھے۔ ابھی تو بس یہ یاد تھا کہ وہ تھا، ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ملبوس سے اٹھتی مہک عمل کے گرد حصار کھینچ رہی تھی۔ نہیں، کس نے کہا کہ مجھے رونا ہے؟ میں کیوں رونے لگی؟ مجھے کس بات کا دکھ ہے؟ اس نے کہا، لیکن آواز آنسوؤں سے لرز رہی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ ولی ہاتھ باندھ کر گردن موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے جتنے بھی دکھ ہیں آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ ہر غم، ہر شکوہ اور ہر دل میں چبھا کانچ آپ میرے سامنے نکال سکتے ہیں عمل، میں سن رہا ہوں۔ اس سے برداشت کرنا مشکل ہونے لگا تھا۔ آنسو روکنے کی کوشش میں جیسے اس کی چلتی سانسوں میں بھونچال سا وارد ہوا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھی بہت زیادہ، لیکن اب وہ اس کے سامنے کمزور پڑنے لگی تھی۔ میں آپ سے نفرت، لیکن اس کے لفظ پورے نہیں ہوئے۔ ولی نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا، بالکل خاموشی سے، اسے کسی بھی قسم کا کوئی بھی جملہ کہے بغیر، اسے بھی کسی قسم کا موقع دیے بغیر۔ اب بتائیں مجھے کہ کتنی نفرت ہے آپ کو مجھ سے۔ اس نے اب کے دوسرا ہاتھ بھی اس کے گرد باندھ دیا تھا۔ وہ اس کے حصار میں بغیر کسی پس و پیش کے سمٹ گئی تھی۔ کیا اس کے پاس کوئی جواز باقی رہ گیا تھا اس سے نفرت کرنے کا؟ ولی کی بہت مدھم سی سانسیں سنائی دے رہی تھیں اسے، اور اس کی دھڑکن، ہاں اس کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ میں سن رہا ہوں آپ نے اور نہیں بتایا کہ مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہیں آپ۔ اس کے لہجے میں شرارت کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ اس کی نرم سی آواز سنجیدہ تھی۔ عمل کے آنسو اس کے سویٹر میں جذب ہونے لگے۔ ان بازوؤں میں کتنا سکون تھا، اسے اپنا ہر دکھ بھولنے لگا تھا۔ بہت نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ اس میں سمٹتے ہوئے جیسے سرگوشی کر رہی تھی۔ ولی پہلی دفعہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں آپ سے اس سے بھی زیادہ نفرت کرتی ہوں ولی، اور میں آپ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ کی ہر نفرت سے زیادہ، آپ کے ہر شکوے اور ہر گلے سے زیادہ۔ عمل آہستہ سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ اس نے نرمی سے بازو کھول دیے، اس کے جھکے سر کو اپنائیت سے دیکھا اور پھر انگشت شہادت اس کی تھوڑی تلے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ عمل کے لب بے ساختہ کپ کپائے تھے۔ ویسے تو اتنی تیز تیز باتیں کرتی ہیں آپ، مجھے لگا تھا کہ آج کی رات تو خیر سے مجھے گھر میں سونا نصیب ہی نہیں ہوگا، لیکن آپ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہی ہیں۔ اور وہ کیا کرتی ہیں آپ؟ ڈانٹنا؟ ہاں ڈانٹے نا، آج تو ڈانٹ بھی نہیں رہی ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے اس کی بھیگی آنکھوں کو شرارت سے دیکھ کر کہا تھا۔ عمل نے بے اختیار ہی اسے بھیگی پرشکوہ نگاہوں سے دیکھا تو ولی احمد ساکت رہ گیا۔ کیا اس کی آنکھوں سے زیادہ خوبصورت بھی اس دنیا میں کچھ تھا؟ بھیگی شہد رنگ آنکھوں پر آج ولی کی دنیا جیسے ختم ہو گئی تھی۔ ایسے مت دیکھے پلیز، اس نے بے ساختہ کہا تو عمل ہنس پڑی۔ اب دھوپ چھاؤں کے ابتزاز نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ میں اب بھی ناراض ہوں آپ سے۔ اگر کچھ بول نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری ناراضگی ختم ہو چکی ہے۔ میں آج بھی آپ سے آپ کی زیادتیوں پر نالا ہوں۔ آج بھی آپ کے دیے گئے زخموں کو اپنی روح پر میں اتنی ہی وضاحت سے محسوس کرتی ہوں ولی۔ آج بھی، ہاں آج بھی آپ کے کہے گئے لفظوں سے بچ کر میں کوئی رائے فرار اختیار نہیں کر سکی۔ آپ مجھے اس بد کردار آدمی کے حوالے کر کے یہاں چلے آئے۔ کیا آپ نے ایک دفعہ بھی سوچا کہ میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گی، میں اس کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی؟ نہیں، آپ اپنے ہی فلسفے پر قائم رہتے ہوئے آخر تک مجھے یہی تسلی کرواتے رہے کہ میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی ولی، لیکن آپ اندر ہی اندر جانتے تھے کہ میں اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی تھی۔ میرے دل کے ہر خانے میں آپ کا نام پورے اختیار سے جگمگا رہا تھا، اور میں اس نام کو مٹانے میں ہلکان ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، ایک ایک لفظ کہتے جیسے دل سے خون رس رہا تھا۔ وہ آج ابھی اپنے دل میں چبھا ہر کانٹا نکالنا چاہتی تھی، ہر وہ پیوست کانٹا جس نے اسے آتی جاتی سانسوں کے ساتھ تکلیف دی تھی۔ ولی نے آہستہ سے اس کے گرتے آنسو اپنے پوروں پر سمیٹے تو وہ اس کے سکون آور سے لمس پر آنکھیں بند کر گئی۔ ماضی کے سارے زخم جیسے مندمل ہوتے جا رہے تھے۔ کہتی رہی، میں سن رہا ہوں۔ مدھم سے کہا تو عمل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابھی وہ اس سے بہت لڑنا چاہتی تھی، اپنے اوپر وارد ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ وہ اس سے لینا چاہتی تھی، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کے لمس پر اسے صرف رونا آئے جا رہا تھا۔ آپ نے بہت برا کیا تھا ولی میرے ساتھ۔ آج بھی میرا دل یہ سوچ کر کام جاتا ہے کہ اگر میں نفیس کے ساتھ زندگی گزارتی تو میرا کیا بنتا۔
मैं तो कहीं की ना रहती वली, वो तो मुझे ज़िल्लत के इस अज़ाब से गुजारता कि जिसका सोच कर इंसान की रूह फना होने लगती है। जब इस दिन आप इतनी हिम्मत नहीं कर पाए थे तो फिर आज आपको क्या पड़ी थी मुझसे निकाह करने की? आज कैसे आपने इतनी जुर्रत से सर उठाकर मेरा हाथ मांग लिया? आज आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी वली? रोते हुए वो इससे जैसे अपने सारे बदले ले रही थी, वो इससे अपने हर आंसू का बदला लेना चाहती थी। अल्लाह ने मुझे आपके पीछे ख्वार करना था ना, इसीलिए 1.5 साल की मुसलसल अजियत के बाद आज आप मेरे सामने हैं, मेरी निगाहों के सामने, पूरी तरह से मेरी होकर। मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा कभी कोई लम्हा मेरे लिए आसूदा हो पाएगा। इसकी आंखें भी गुलाबी पड़ने लगी थी। अमल ने किसी गैर इरादी सी कैफियत के ज़ेरे असर हाथ उठाया और इसके चेहरे को पहली बार ज़िंदगी में पहली बार छुआ। वली इसके इस तरह से छूने पर साकित हुआ था। 1.5 साल से मुसलसल सिर्फ आप अजियत में नहीं थे वली, मेरा भी हर दिन, हर सात और हर लम्हा अज़ाब बनकर गुजरा है मुझ पर। जानते भी हैं इंतज़ार की घड़ियाँ कितनी तवील और थका देने वाली होती हैं। मैंने हर इस गुजरती घड़ी में आपको याद किया है वली, इतना याद किया है कि मैं खुद को भी भूलने लगी थी। वली ने अपने चेहरे पर रखे इसके हाथ पर हाथ रखा था। इसके ठंडे पड़ते हाथ पर अपना नरम गरम सा हाथ रखा तो वह जैसे चौंकी। इसकी नस्वारी आंखों को देखा, बेख्तियार इसके हाथ से अपना हाथ निकालकर पीछे हुई ही थी कि वली ने इसे दोबारा से अपनी जानिब खींचा। किसी लचकती डाल की तरह वो इससे तक खिंची चली आई थी, करीब, बेहद करीब। कहती रहे मैं सुन रहा हूँ। इसके बहुत करीब सरगोशी की थी इसने। अमल के रुखसार दहक उठे। इसकी इतनी कुर्बत पर लगता था जान निकल जाएगी। अपने इतने करीब करके वो कह रहा था कि वो कहती रहे। वो क्या कहती? सारे अल्फाज जैसे सिमट कर गुम हो गए थे। मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर आप तक कोई दुख, कोई परेशानी और कोई ज़ख्म नहीं आने दूंगा अमल, मैं वादा करता हूँ आपसे। बेख्तियार एक बार फिर से इसे खुद में समेट कर इसने मध्यम सा कहा तो अमल ने आंखें मूंद कर सुकून से अपना सर इसके सीने पर टिका दिया। यूँ लगता था जैसे बरसों की रियाजत का सिला अल्लाह ने एक ही दिन में दे दिया हो। यकायक वली का फ़ोन बजा तो वो चौंक कर इससे अलग हुआ। कितने लम्हे इसी बेखुदी की नज़र हुए थे, इन्हें पता ही नहीं चला। अमल ने भी इसकी जेब से फ़ोन निकालने पर भीगी आंखें साफ़ की और मुस्कुराती हुई पीछे हुई। असगर का नंबर देखकर वली ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया था। हाँ असगर, कहो। हाथ बढ़ाकर इसके बालों में अटके झूमर को छुआ तो अमल बेतरह चौंकी। या अल्लाह, ये झूमर अब तक बालों में लगा था। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ कुछ देर में। हाँ सही। फ़ोन कान से हटाकर इसने अमल को देखा। सफ़ेद लिबास में मलबूस वो कोई अप्सरा लग रही थी, आंसुओं से धुले धुलाए चेहरे वाली अप्सरा। असगर का फ़ोन था, मुझे बुला रहा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, शायद कोई काम है ऐसे, और ये झूमर मत हटाओ, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो बालों पर लगे टेढ़े मेढ़े से झूमर को हटा रही थी यकदम रुक गई। जी नहीं, मुझे नमाज़ पढ़नी है ईशा की, तो मुझे ये हटाना ही पड़ेगा। खुद को मोहतरम पढ़कर आ चुके हैं, मेरी नमाज का वक़्त निकाल दिया। एक खफा निगाह इस पर डाली और झूमर बालों से हटाती इसके साथ से निकल गई। वली मुस्कुराता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा था। इसने सिंगार मेज़ के सामने खड़े होकर खुद का अक्स देखा तो दंग रह गई। चंद लम्हों ही में इसका रंग खिल गया था, आंखें चमक रही थी और दिल हर बोझ से आज़ाद हो चला था। सिर्फ एक इंसान के साथ से दुनिया कितनी हसीन हो जाती है, इसका एहसास अमल को आज हुआ था, इस लम्हे हुआ था। इसने मुस्कुराकर झूमर सामने रखा और फिर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। अभी इसे अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होकर शुक्रगुजारी के नफल भी पढ़ने थे। छोटे से अपार्टमेंट से यकदम ही खुशबू आने लगी थी, पाकिज़गी और चाहत की खुशबू। ज़मानी ने अपनी नमाज से सलाम फेंकर ज़ुबान को देखा जो अपनी रॉकिंग चेयर पर झूलते सुकून से मुस्कुरा रहे थे। यूँ लगता था जैसे इन्हें बरसों बाद करार आया हो। वो भी मुस्कुरा कर दुआ करती जाए। नमाज से उठी और फिर इनके साथ रखे सोफे पर आ बैठी। ज़मान ने यकदम ही आंखें खोली थी, फिर इन्हें देखकर मुस्कुराए। आज लगता है जैसे दिल से हर ज़ख्म मिट गया हो। यूँ लगता है जैसे हर ज़ख्म के बदले में अल्लाह ने वली को मरहम बनाकर भेजा हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ ज़मानी कि मुझे वली जैसा बेटा मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार का। ज़मानी ने भी आसूदगी से मुस्कुराकर सर हिलाया था। इनके अपने दिल में भी जैसे ठंड पड़ गई थी। यकायक इनके कमरे का दरवाज़ा बजा तो दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा। बख्तियार की व्हील चेयर घसीटती शाजिया इसे अंदर ला रही थी। इसके पीछे ही निसार और अमीना भी थे। आज सबके चेहरे ही खिले खिले से लगते थे, दिल खुश थे और रूह मुतमईन। इनकी बहन, इस घर की बेटी, बगैर किसी झमेले के इज्जत के साथ अपने घर रुखसत हो गई थी।
इससे ज़्यादा भला अब क्या खुशी रह गई थी उनके लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ बाबा, बहुत ज़्यादा। कहते कहते बख्तियार की आंखें भीगी तो सभी अमल के जाने पर उदास हो गए। मैं भी बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने हमारी ज़ात पर बहुत बड़ा एहसान किया है वली को हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाकर। बेशक, निसार ने कहकर यकदम सर झुकाया था। इनके दरमियान के खिंचाव और मुस्तकिल माजी की चुपकुलिश जैसे पिछले हादसे के बाद से ख़त्म हो गई थी। अगर कुछ रह गया था तो वो एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की इज़्ज़त करना। इन्हें समझ आ गया था कि इंसान की इज़्ज़त सिर्फ अपने घर वालों के साथ में है, अपने नेक कमाल और उम्दा अखलाक में है। इन्हें ये समझ आ गया था, मगर बहुत कुछ खोने के बाद। हाँ, खोए बगैर भी भला कभी कोई इंसान संभला है। दूसरी जानिब अमल ने अपनी नमाज से सलाम फेंक कर दुआ के लिए हाथ उठाए थे। सफ़ेद दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटे, शहद रंग आंखें बंद किए वो दुआ मांग रही थी। यकदम इसे अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ आई। फिर कोई कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। इसने आंखें नहीं खोलीं, महव होकर दुआ मांगे गई। यकायक इसने महसूस किया कि कोई इसके साथ आ बैठा है और फिर इसकी गोद में अपना सर रखे वो अब इसे ही देख रहा है। इसकी बंद पलकें लरजने लगीं, होंठ मुस्कुराहट रोकने में नाकाम होने लगे थे। मेरे लिए भी दुआ मांगिएगा। इसने जलकर दुआ के लिए उठे हाथ एक जानिब को किए और चेहरा झुकाकर इसे देखा, जो नस्वारी आंखों में ढेरों कीदत लिए इसके चेहरे को देख रहा था। साथ इसने एक जानिब से लब दांतों तले दबाकर मुस्कुराहट भी रोक रखी थी। आप मेरी दुआ में मुखल हो रहे हैं और जो अमल की दुआ में मुखल हो वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसने एक बार फिर आंखें बंद करके दुआ पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन उफ, वो गोद में सर रखे लेटा था। मैं कब मुखल हुआ हूँ, सिर्फ दुआ की दरख्वास्त की है। कितनी मासूमियत से कह रहा था। अमल ने दुआ अधूरी छोड़कर हाथ चेहरे पर फेरे और जैसे ही निगाहें झुकाई, नज़रें इसकी नज़रों से जा उलझी। बहुत बुरे हैं आप, सो तो है। मुझे वो नफीस ज़्यादा अच्छा लगता था। बेख्तियार इसने निगाहें इस पर उठाई थी। अमल ने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी। मुझे पता है आप हमेशा से मुझे पसंद करती थी, बल्कि अभी कुछ देर पहले आपने मुझसे किसी बात का इजहार भी किया था। क्या था भला वो? किसने कहा मैं आपको पसंद करती हूँ? इसने दुपट्टे की तह खोली तो स्याह लिट फिसल कर चेहरे पर आ गिरी। वली ने बेसाख्ता हाथ बढ़ाकर इसकी लिट कान के पीछे उड़सी थी। इसकी निगाहें बेसाख्ता झुकी, लेकिन उफ, वली का चेहरा सामने आया। इसने जल्दी से इसकी आंखों पर हाथ रखा था। वली बेसाख्ता खुलकर मुस्कुराया। आहा, ठीक है, मुझे पसंद नहीं करती हैं आप, लेकिन शर्मा ज़रूर रही हैं। जो भी कहें, मैं अब हाथ नहीं हटाऊंगी। आपकी नज़रें बहुत गुस्ताख हैं। वली हंसा था। मैंने समझाया हुआ है, इन्हें अब कोई गुस्ताखी नहीं करेंगी। इसका हाथ इसने निगाहों से हटाकर बेसाख्ता होंठों से लगाया तो अमल कानों की लुओं तक सुर्ख पड़ गई। वो अपनी आंखों में सारे जहां की इज्जत समेटे इससे ही देख रहा था। जानती हैं, मैं आपको अपना हर जख्म दिखाना चाहता था, आपसे अपने दिल के हर घाव को बांटना चाहता था, आपको अपने हर राज में शरीक करना चाहता था, अपना हर दुख आपकी गोद में सर रख कर रोना चाहता था मैं। लेकिन आज यूं आपको देखते हुए मुझे लग रहा है जैसे मुझे तो कभी कोई जख्म लगा ही नहीं था, जैसे ये ज़िंदगी तो आज ही शुरू हुई है। आपके साथ से पहले तो मैं जिंदा ही नहीं था, बस जी रहा था। अमल उदासी से मुस्कुराकर इसका ईमान अफरोज चेहरा देख रही थी। बिलाशुबा इसे बेहतरीन से नवाजा गया था। मैं आपका हर जख्म, हर दुख, हर महरूमी और हर ख्वाहिश पूरी करने की भरपूर कोशिश करूँगी वली। मैं भी आपको कभी तरह नहीं करूँगी। मैं दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह से आपका साथ तलब करूँगी, क्योंकि आपका साथ मेरी ज़िंदगी की मता है, मेरी अंधेर ज़िंदगी का तारा है, जिसकी रोशनी में मुझे अपनी ज़िंदगी गुजार कर आखिरत की घड़ियों तक आपका इंतज़ार करना है। वली इसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था, फिर इसका पकड़ा हाथ अपने दिल पर रखा। आप बहुत खूबसूरत हैं, कभी कभी मैं मबहूत हो जाया करता हूँ आपकी खूबसूरती से। जानती हूँ। कमाल बेनियाजी से कहकर देखा था इसे। वो हंस पड़ा। लेकिन मेरी सारी सादतमंदी का साथ आपको तब ही मैसर आ सकता है जब आप मेरी एक बात मानेंगे। कहें। अमल का हाथ अब तक इसके हाथ तले दबा था। मुझे बीबी कहना छोड़ दें, ये तो मुश्किल है, इसने साफ जवाब दिया। अमल ने खफगी से इसे देखा था। पता है ना मुझे कैसा गुस्सा आता है। जानता हूँ, क्योंकि आपके अताब का शिकार अक्सर मैं ही होता था। लेकिन मसला तो सारा यही है कि मुझे आप गुस्से में और भी अच्छी लगती हैं। मैं कब अच्छी नहीं लगती? आंखें घुमाकर कहा तो वली का दिल किया इसे बिना पल के झपकाए देखता ही रहे। आप फिर से वही कर रहे हैं। इसने अपना हाथ एक बार फिर इसकी आंखों पर रखा तो वली का कहकहा बेसाख्ता गुंजा। क्या कर रहा हूँ? इसने अब के इसका हाथ नहीं हटाया था। गुस्ताखी।
इसने झुककर हल्के से कहा और फिर एकदम उठ गई। वली का सर बेसाख्ता ज़मीन से टकराया था। अब ये ज्यादती है। इसने सर के नीचे हाथ रखकर इसे कहा तो वो इसे मुंह चढ़ाकर बाहर भाग गई। वो भी उठकर इसके पीछे भागा था। आने वाली सातें अपने अंदर खुशी रोशनी के बहुत से जुगने समेटे हुए थी और इनकी धमक, इन आने वाले लम्हात की मुअत्तर घड़ियां वली और अमल बखूबी महसूस कर सकते थे। इनसे दूर गांव की पहाड़ी पर पड़ी एक लावारिस लाश अब तक रूखी हवा के साथ मिट्टी बनकर उड़ रही थी। इसी लाश के ताखुन ज़दा सी नहुसत के बायस पहाड़ पर उगी घास जलकर राख हो चुकी थी। दूसरी जानिब अपने कमरे की तारीकी में बिस्तर पर दराज हुसैन का लागर वजूद अब आहिस्ता आहिस्ता गलने सड़ने लगा था। अमाल के बायस इसकी रूह तो खाकस्तर हो ही चुकी थी, लेकिन अब इसका जिस्म भी इन अमाल के असरात के असर से गोया सड़ने लगा था। इन सब का अंजाम गर्दन तिरछी किए कागजात पर लिखते मैं यही सोच रही थी कि जिसे पलट आना हो वो पलट आता है, और अमाल का टलना, अमाल के नताइज का टल जाना तो बहुत ही गैर यकीनी सी बात है, क्योंकि अमाल एक ना एक दिन ज़रूर पलट आते हैं, मज़ीद भयानक और तारीख होकर, जैसे हुसैन और हाशिम के माल इन पर पलट आए थे, मज़ीद तारीख और भयानक होकर, और जैसे वली और अमल पर इनके अमाल पलट आए थे, मज़ीद खूबसूरत और पाकीज़ा होकर। ख़त्म शुद।